Speaker. Respected dignitaries, today's speaker and guest, Principal in charge of our college, Dr. Shivaji Nagre sir, Dr. Saraf Madam, Head Department of Sociology and Coordinator of Add-on Course in Applied Sociology, Dr. Pisolkar sir, Head Department of Commerce, Dr. Sumit Kavale sir, Head Department of Economics, Dr. Piyush Nale sir, Head Department of Business Management, and all CHB staff of our college, and my dear students. A very good morning and warm welcome to all of you in this inauguration of add-on course and wealth awareness program. Today, on 19th January, we are paying a tribute to late Shri Shankar Lalji, alias Kakaji, on his death anniversary. He was founder member of Shikshan Prasarak Mandal, Akola. The sudden and unprecedented circumstances due to COVID-19 pandemic dramatically affected the academic community and thereby changing the nature of teaching and learning process. There arose a distinctive need for e-learning and continuance of teaching learning over remote and digital platforms. We at Shankarlal Khandelwal College accepted this challenge of disruption and discontinuity and turned them into our advantage by exploring imaginative and innovative applications of technology to engage with teachers and students in meaningful and productively. Due to this pandemic, offline education is on halt and not a single student in the college. Everyone has shifted to online mode and teaching learning process is going on. Thus, our college has accepted this challenge, and with this various activities are also conducted in online mode. Organizing various activities for students which will inculcate different values in them so that they can live better life. This add-on course on analysis and management of investment for students and applied sociology is a part of such activities. This add-on course is organized by Department of Accounts and Statistics and Department of Sociology. In this course, you will get in touch about investment, the concept of saving and investment, the importance of investment, different avenues available in the market, how to set our financial goals, how to prepare our own budget. This course is conducted completely in online mode. Daily video lectures and reference material will be shared with you on your WhatsApp broadcast group. You can go through it at any time during the day. Thus, the add-on course on sociology is also introduced by Department of Sociology. Nowadays, importance of sociology is increasing in day-to-day life. Its main importance is in counseling, survey, in research. Survey is used by companies, healthcare department, healthcare service providers to introduce various schemes amongst public at large. Sociology is an international subject and there is a global scope for the students. This course provides critical insight and perspective to the solution of social problems. This will prove beneficial for all. I congratulate all the registered participants for their curiosity to learn new things in new way. The knowledge you will gain in this course will be very helpful and valuable for financial aspects and sociological aspects throughout your life. Since financial management and knowledge of sociology is very important for each and everyone in their life. So we are now moving towards the next part of our program, this introduction of guest. We have amongst us Ms. Diksha Gojia. She is a trainer for financial literacy and investors education at Board of Industry Academic Partnership. She has conducted numerous financial literacy and investor awareness programs for various target audience as an investors education initiative through BIAP.
She is a postgraduate in business management from UPG College, Mumbai. She graduated in management with specialization in the finance from MMK, College of Commerce and Economics, Mumbai. She qualified her UGC NET in commerce. Had worked at Jet Airways in the finance department. In her free time, she likes to read, listen to music, and play badminton. For the inauguration of this course, we have Miss Diksha Georgia. May I now request Madam to please make an announcement about the starting of these two courses. Hello, Diksha Madam. Yes. Hi, good morning. Good morning. So can we start with the financial wellness program? Just a minute, Madam. May I now request Madam to announce that the add-on course in analysis and management and investment for students and applied sociology is inaugurated. And now you can start our wealth awareness program. Okay, thank you so much. So first of all, a very good morning to one and all present here. My name is Daksha Gogia and I'm a trainer for financial literacy at Board of Industry Academia Partnerships. So I have conducted numerous, wellness programs in the past few months, and I'm really happy that I've gotten this opportunity to conduct a program in this college as well. So now we can finally start with the session. I just want to know that what language is going to be comfortable for you all. If you could just tell me in the chat box. Hindi, Marathi, English. Okay, all right. So mixture works, right? मराठी मुझे नहीं आती, but हिंदी आती है, so हम हिंदी and English में कर सकते हैं ये session. Okay, so just a few rules before we start. First things first, please keep your mic on mute at all times, because you know अगर unnecessary आप unmute करेंगे तो उससे disturbance create होगा. And next is that if I'm asking any question, obviously आप अपने आप को unmute करके answer कर सकते हैं, and आप chat box का भी use कर सकते हैं to answer. And if you have any queries or any doubts, then you can ask me towards the end of the session. So I will be sharing my screen now, and just let me know if it is clearly visible. सबको स्क्रीन दिख रहा है? Visible, ma'am. Go Yes, ahead. madam. Okay. Thank you. All right. And also I would request all of you to interact as much as you can. आप जितना हो सके questions का answers दे, because उससे session में मजा भी आएगा and आपको बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा, right? Okay, so before we dive into the depth and understand a lot of financial concepts, मेरा आप लोग से सिर्फ एक easy question है जो मैं चाहती हूँ कि आप आंसर दे उसका. So my question is, why do you think that investor awareness is important? मतलब ऐसा क्यों जरूरी है कि हर एक इंडिविजुअल को फाइनेंस से रिलेटेड जो बेसिक नॉलेज है वो होना चाहिए? आप लोग अनम्यूट करके आंसर कर सकते हैं, आप चैट बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आई विल रिपीट, माय क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू फील that everybody should have the basic knowledge of finance? How is it important for everyone? उत्तर दे. I think students are a little shy. देखो, आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, आपके माइंड में जैसा आंसर आता है आप वैसा दे सकते हैं. We are not looking for accurate answers anyway. और आप चैट बॉक्स का भी यूज करके मुझे आंसर दे सकते हैं. कम ऑन, बहुत इजी क्वेश्चन है. फाइनेंस के बारे में हमें क्यों पता होना चाहिए? उससे क्या हमारे लाइफ में हेल्प होगी? कैसे वो हमारे लाइफ को अफेक्ट करता है? ओके.
हॅलो, तुम्ही मराठीतही बोलू शकता, तुम्हाला जे वाटतं ते. हाँ, आप मराठी में भी आंसर कर सकते हो। मुझे मराठी समझ में आता है बट मुझे बोलने नहीं आता, सो आप मराठी में भी आंसर कर सकते हो। ओके, फाइनेंस से हम अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। ओके, वेरी गुड। आप अपना ग्रोथ कर सकते हो, बिजनेस बढ़ा सकते हो, वेरी नाइस। ओके, आकांक्षा बोलती है इट विल इक्विप यू विद द नॉलेज एंड स्किल टू मैनेज योर मनी इफेक्टिवली। वेरी गुड आकांक्षा, ये राइट आंसर है। सो बेसिकली इन्वेस्टर अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल वेलनेस इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको नॉलेज देता है जिससे आप अपने मनी को, अपने फंड्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो। एट टाइम्स हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम फाइनेंस के फील्ड में पढ़ाई नहीं कर रहे तो हमें फाइनेंस के बारे में पता भी नहीं होना चाहिए, और वो एक्चुअली काफी लोगों की गलत सोच होती है। इनफैक्ट अगर आप कोई भी फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आगे जाके आप किधर जॉब करेंगे या आप अपना बिजनेस करेंगे, तो जब आप उसके थ्रू पैसे अर्न करेंगे तो फाइनेंस का ही नॉलेज है जो आपको ये सिखाएगा कि कैसे आप अपने फंड्स को, अपने मनी को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो, कैसे आप सेव कर सकते हो, कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बिकॉज आई थिंक सभी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, राइट? इसलिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, जॉब करते हैं, ताकि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाए। सो दैट इज द रीजन फाइनेंशियल वेलनेस एंड इन्वेस्टर अवेयरनेस हमारे लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आज के प्रोग्राम में हमारा पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं इज अबाउट द सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट बेसिकली फाइनेंस का एक बहुत ही मेजर हिस्सा है, सो इसलिए इसके बारे में पता होना जरूरी है। सो इसको समझने के लिए हम इसको 2 वर्ड्स में डिवाइड कर देंगे। सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डज द वर्ड मार्केट मीन। हम सबको पता है मार्केट वो जगह होती है जहां पर हम अलग अलग टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज को बाय एंड सेल करते हैं, करेक्ट? तो सिक्योरिटीज क्या होते हैं? सिक्योरिटीज होते हैं आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। ये अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, इसकी जो बाइंग है, सेलिंग है, ये सिक्योरिटीज मार्केट में होती है। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने ट्रेडिंग, अपने इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज को कैरी आउट कर सकते हो। एंड हमारा जो कंट्री है इंडिया, उसमें जो सिक्योरिटीज मार्केट है वो बहुत बड़ा है, इसलिए उसको और 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा है प्राइमरी मार्केट और दूसरा हिस्सा है सेकेंडरी मार्केट। और ये जो दोनों हिस्से हैं सिक्योरिटीज मार्केट के, बीट प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये दोनों में आप इन्वेस्टमेंट कैरी आउट कर सकते हो, पर ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। सो इनके बीच का डिफरेंस क्या है और आप इन दोनों में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, ये हम आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करें। उसके पहले आपके स्क्रीन पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया है, आई थिंक आप सब वो रीड कर सकते हैं। डू यू नो हु आर द रिचेस्ट पर्सन्स इन द वर्ल्ड? तो अभी हम यहाँ पे टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन्स इन द वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे। पूरा वर्ल्ड, नॉट जस्ट आवर कंट्री बट द होल वर्ल्ड। सो क्या आप लोग मुझे गेस करके बता सकते हो, अकॉर्डिंग टू यू गाइस, ये जो टॉप 10 रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड है, ये वाले लिस्ट में कौन कौन आता है? क्या आप लोग गेस करके बता सकते हैं? टाटा, बिरला, अंबानी जैसे लोग। यस, अंबानी तो आते हैं, मुकेश अंबानी, वो 10th पोजीशन पे है। बिल गेट्स, बिरला नहीं है। यस, वेरी गुड, बिल गेट्स, बिल गेट्स, इलॉन मस्क, वेरी गुड। 3 करेक्ट नेम्स मुझे मिल गए हैं। और कोई जो आंसर करना चाहेगा? वेरी गुड, लैरी पेज। अदानी। एक्चुअली हम लोग ये जून 2021 के हिसाब से जो लिस्ट है वो डिस्कस कर रहे हैं। क्या हुआ था कि बीच में ये हुआ था कि गौतम अदानी ने मुकेश अंबानी को रिप्लेस किया था 10th पोजीशन पे, बट एक्चुअली क्या होता है, ये जो लिस्ट होती है ना, इसमें नाम ऊपर नीचे होते रहते हैं क्योंकि इनका जो नेटवर्क है वो चेंज होते रहता है। सो वी आर ओनली गोइंग टू स्टिक टू मुकेश अंबानी एज ऑफ नाउ।
on the the list that we are discussing? Yes, Jeff Bezos, Warren Buffett, correct. Very good. Okay, so अभी हम ना quickly, yes, Elon Musk, right. अभी हम quickly इसको एक और order में arrange कर लेते हैं. तो पहले we have Jeff Bezos, जो है Amazon के founder. I think हम सबको पता है Amazon एक बहुत ही बड़ा e-commerce giant, जिससे हमने online shopping के लिए इस्तेमाल किया होगा काफी बार. Then we have Elon Musk, founder of Tesla and SpaceX, followed by Bernard Arnault, who's on the third position. तो वो एक बहुत ही बड़े कंपनी के सीईओ है, MHLV, मोए हेनेसी लुई विटॉन. तो ये एक कंपनी अपने अंडर 60 कंपनी मार्क ज़करबर्ग है. यस, करेक्ट. फिर आते हैं बिल गेट्स, जो है माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर. फिर आते हैं मार्क ज़करबर्ग, जिन्होंने फेसबुक इन्वेंट किया. फेसबुक आई थिंक ऐसा पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका हमने इतना इस्तेमाल किया. मतलब जब वो आया था इतना ज्यादा उसको लोगों ने इस्तेमाल किया. सो इट वाज अ वेरी ब्रिलियंट आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग फेसबुक, राइट. देन वी हैव वॉरेन बफेट, वो बहुत ही बड़े इन्वेस्टर हैं. इनफैक्ट उनको तो पूरे ग्लोबल स्टॉक मार्केट के किंग का टाइटल दिया गया है. एक चीज उनके बारे में जो बहुत कम लोगों को पता है वो ये है कि उन्होंने 11 साल की उम्र में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया था. जब वो सिर्फ 11 साल के थे उन्होंने अपना पहला इन्वेस्टमेंट किया. फिर आते हैं लैरी एलिसन, उसके बाद आते हैं लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन, दोनों गूगल के फाउंडर्स हैं. और लास्ट में आते हैं एक इंडियन, सिर्फ एक ही इंडियन है ये पूरे लिस्ट में, और वो है मुकेश अंबानी, बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियल टाइकून, रिलायंस इंडस्ट्रीज ओनर. एंड वी ऑल आर अवेयर ऑफ what Reliance is and everything. Now आप ये सोचोगे यार ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम इतना डीप में क्यों डिस्कस करें, ये आज के प्रोग्राम से कैसे एसोसिएटेड है. So let me tell you, the reason we are discussing about these people is because apart from being very big entrepreneurs and running such big businesses that are nothing less than multi-billion-dollar businesses, what is this one activity that they have been carrying out on a consistent basis, which is one of the main reasons के आज वो इस पोजीशन पर है अपने लाइफ में. मतलब बड़े बड़े बिजनेसेस रन करने के अलावा ऐसी एक और क्या चीज है जो ये करते आ रहे हैं जिसके कारण वो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं. इट्स जस्ट अ वन वर्ड आंसर दैट आई एम लुकिंग एट. क्या लगता है आपको, क्या है वो एक्टिविटी? हिंट उसका स्क्रीन पर भी काइंड ऑफ दिया गया है, आपको सिर्फ इसको थोड़ा सोच के मुझे बताना है क्या हो सकता है. बिजनेसेस तो वो चला रहे जिससे वो ऑलरेडी ऑफ कोर्स काफी पैसे कमा रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं वो उन पैसों के साथ जिससे वो और ज्यादा ग्रो हो रहा है? सिक्योरिटीज और शेयर्स, मतलब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो वो वर्ड क्या है, क्या कर रहे हैं वो शेयर्स में? इन्वेस्ट. वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट. वैष्णवी, राइट, आपने दिया ना आंसर? यस. वेरी गुड वैष्णवी, इन्वेस्टमेंट इज द करेक्ट आंसर. तो उन्होंने अपने पैसों को इस तरीके से इन्वेस्ट किया है कि उनके बिना कुछ किए उनके पैसे उनके लिए पैसे बना रहे हैं. एंड बाय बिना कुछ किए आई मीन जब आप अपना बिजनेस रन करते हैं या आप किधर जॉब करते हैं तो जाहिर सी बात है उसके लिए बहुत मेहनत करे, काम करे, इसलिए रिटर्न में आपको वो पैसा आ रहा है, इसलिए उसको हम एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम बोलते हैं. लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट के थ्रू वो कमा रहे हैं दैट इज देयर पैसिव सोर्स ऑफ इनकम. उन्होंने सिर्फ इन्वेस्ट किया है, जाहिर सी बात है उन्होंने रिसर्च और एनालिसिस किया है, लेकिन दैट इज इट. अब जब हम इनके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि सबसे ज्यादा इनका जो इन्वेस्टमेंट है ये शेयर मार्केट में है. ओके, एंड another thing that we need to focus on is that they have been investing consistently, which means that ऐसा नहीं कि आज हमने उठ के इन्वेस्ट किया, कल मूड आया तो छोड़ दिया और फिर वापस 3 दिन बाद शुरू किया. ऐसे काम नहीं करता है इन्वेस्टमेंट. अगर आपने एक बार शुरू किया है तो यू हैव टू बी एट इट, बिकॉज अगर आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करेंगे तो ही आपको वो रिजल्ट्स मिलेंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सो ये लोग भी कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते आ रहे हैं एंड सबसे ज्यादा इनके शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट है. इसलिए इनका जो सोर्स ऑफ वेल्थ है इनके सिर्फ बिजनेसेस में नहीं बट इनके ओनरशिप ऑफ शेयर्स में भी रिफ्लेक्ट होता है. अब जब हम शेयर मार्केट की बात करते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर्स, जिसको हम
ये एग्जाम्पल से समझेंगे तो आप अपने सामने देख सकते हैं एक चेस बोर्ड। आपको इमेजिन करना है कि ये चेस बोर्ड एक कंपनी है, ठीक है, और इस पर जो स्क्वायर्स हैं वो शेयर्स हैं। तो यहाँ पर 64 स्क्वायर्स हैं, एंड क्योंकि एक स्क्वायर एक शेयर के समान है तो टोटल में कंपनी के भी 64 शेयर्स हैं। रियलिटी में इतने कम शेयर्स नहीं होते, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो क्या होता है कि असल में कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस जो होती है वो ऐसे ही छोटे 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 यूनिट्स में बटी हुई होती है, और हर उस छोटे से यूनिट को हम शेयर बोलते हैं। तो जब भी आप किसी कंपनी का शेयर या शेयर्स बाय करते हैं तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं, क्योंकि आपने उस कंपनी के हिस्से में अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, चाहे वो 0.01% ही क्यों ना हो। और आप एक साथ काफी सारे कंपनीज के भी शेयर्स बाय कर सकते हो। ऐसे नहीं अगर आपने एक एक्स कंपनी के शेयर्स बाय किए तो अभी आप कोई और कंपनी के नहीं बाय कर सकते। आप एक ही समय पर कितने भी कंपनीज के शेयर्स बाय करके उनके शेयर होल्डर बन सकते हो। एंड जब आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हो तो सबसे बेसिक जो राइट है, जो सबसे बेसिक हक है आपका एज अ शेयर होल्डर है टू रिसीव डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड वो होता है जो शेयर होल्डर्स को कंपनी देती है अपने प्रॉफिट्स में से। जाहिर सी बात है, अगर आपने कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो आप कुछ तो रिटर्न में एक्सपेक्ट करोगे ना, राइट? तो ये जो रिटर्न्स होते हैं जो शेयर होल्डर्स को मिलते हैं फ्रॉम द कंपनी, फ्रॉम देयर प्रॉफिट्स, दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड। ओके, तो ये याद रखना कि जब भी आप शेयर्स बाय करें किसी कंपनी के तो आप ये जरूर देखें कि उन्होंने पास्ट में क्या रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर्स को दिए हैं, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनालाइज करना। अब यहाँ पे हम कंपनी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? तो कंपनी की शेयर प्राइस है 1 रुपी, विच मीन्स एक शेयर 1 रुपए का है, और टोटल में कितने शेयर्स है? 64। तो कंपनी की वैल्यू कितनी हुई? 64, क्योंकि एक शेयर 1 रुपए, टोटल शेयर्स 64, 64 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 64। नाउ अगर आपको इस कंपनी का हाफ या 50% बाय करना है यही कंपनी का, तो आपको कितने शेयर्स बाय करने पड़ेंगे या कितना मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसका हाफ बाय करने के लिए? अगर पूरे कंपनी की वैल्यू 64 रुपीज है तो 32। वेरी गुड, 32 इज द करेक्ट आंसर। आपको 32 रुपए लगेंगे इस कंपनी का आधा हिस्सा खरीदने के लिए। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। लेट्स इमेजिन आपने इस कंपनी के सिर्फ 5 शेयर्स बाय किए हैं, 5 शेयर्स फॉर 5 रुपीज, क्योंकि अगर एक शेयर 1 रुपए का है तो 5 शेयर्स 5 रुपीज के हैं। थोड़े समय बाद, लेट्स से 2-3 मंथ्स के बाद, नॉट 2-3 मंथ्स, फ्यू डेज के बाद कंपनी का शेयर प्राइस ₹1 से 10 हो जाता है, इंटू 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। एंड आप सोचते हो कि यार इससे ज्यादा शायद शेयर प्राइस बढ़ेगा नहीं, तो ये बेस्ट टाइम है मेरे शेयर्स को सेल ऑफ करने का। तो आप अपने जो 5 शेयर्स हैं वो बेचने का सोचते हो और आप बेचते हो। तो जब आप ये 5 शेयर्स बेचोगे आपको रिटर्न में कितना आएगा? 50। वेरी गुड, 50। और आप इस पूरे ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट कितने का कमाओगे? 47। No. सॉरी 4। 45, क्योंकि आपने 5 रुपए कैपिटल इन्वेस्ट किया, आपको 50 मिला, 50 में से 5 आप हटा दे तो बचता है 45, विच इज द प्रॉफिट यू विल अर्न ऑन दिस ट्रांजैक्शन। वेरी गुड मयूरी। सो यही होता है बेसिकली, आप शेयर्स बाय करते हैं जब आपको लगता है कि ये सही समय है, प्राइस कम है, आगे बढ़ सकता है, तो आप तभी के तभी बाय कर देते हैं। और जब शेयर प्राइस बढ़ता है और आपको लगता है कि शायद इसके आगे बढ़ेगा नहीं और फिर घटने जाएगा, तो आप उसको सेल ऑफ कर देते हैं। इसी को हम ट्रेडिंग बोलते हैं। यही होता है ट्रेडिंग, बाइंग शेयर्स, होल्डिंग देम एंड सेलिंग देम ऑफ, राइट? अभी हम ये तो समझ गए कि यार कोई भी कंपनी का शेयर प्राइस कभी सेम नहीं रहता, वो या तो बढ़ेगा या तो वो गिरेगा। बट ऐसे क्या फैक्टर्स है जो शेयर प्राइस को अफेक्ट करते हैं? तो 2 फैक्टर्स जो शेयर प्राइस को अफेक्ट करते हैं वो है डिमांड एंड सप्लाई। कैसे, इसको हम समझते हैं। मान लो कोई कंपनी है, एक्स कंपनी, वो जो मार्केट में प्रोडक्ट्स बेच रही है उसका डिमांड कस्टमर्स के तरफ से बहुत हाई है, तो कस्टमर ज्यादा से ज्यादा
उस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाय कर रहे हैं, उसके कारण कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हैं, उनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, उनका जो रेप्यूटेशन है मार्केट में वो बढ़ रहा है, जो गुडविल है, इमेज है उनकी मार्केट में वो काफी अच्छी है, और वो अपने टक्कर के जो कंपनीज है उनको अच्छी खासी कंपटीशन दे रहे हैं, राइट? तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स एक्स कंपनी को एज अ वेरी गुड कंपनी व्यू करेंगे एंड दे विल वांट टू बाय द शेयर्स ऑफ एक्स कंपनी बिकॉज इट इज अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी राइट नाउ एंड इसका स्कोप भी आगे काफी अच्छा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस कंपनी के शेयर्स को बाय करना चाहेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कंपनी के पास उतने शेयर्स ना हो इन्वेस्टर्स के डिमांड को पूरे करने के लिए। सो ऐसे केस में डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाएगा एंड शेयर प्राइस बढ़ते जाएगा। लेकिन यही अगर इसका उल्टा होता है, कोई कंपनी जिसके सेल्स डिक्लाइन हो रहे हैं, प्रॉफिट्स खास नहीं है, मार्केट में नाम इतना अच्छा नहीं है, या उससे रिलेटेड कोई बैड न्यूज मार्केट में आई है, तो आप देखेंगे शेयर प्राइस गिरते जाएगा, राइट? क्योंकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स कंपनी के शेयर्स बाय करना नहीं चाहेंगे। सो ऐसे केस में सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं, सेल्स, प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, गुडविल ऑफ द कंपनी, कैसे वो दूसरे कंपनीज के साथ compete कर रही है, ये फंडामेंटल फैक्टर्स होते हैं जिसको एनालाइज करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ऐसे ही कोई भी कंपनी के शेयर्स नहीं बाय कर सकते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सारे जो फैक्टर्स हैं इसको एनालाइज करके डिसीजन ले वेदर इट इज वर्थ टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी और नॉट, राइट? नाउ लेट्स से आपको कहीं से पता चल गया जो ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री है उसके प्रॉफिट्स ग्रो होने वाले हैं एंड आपको इसका बेनिफिट उठाना है। तो इसका बेनिफिट उठाने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप खुद का बिजनेस सेट कर लें ऑयल रिफाइनरी का, या तो आप जस्ट अ सेकेंड, या तो आप किसी अच्छे ऑयल रिफाइनरी कंपनी के शेयर्स बाय कर लें, ठीक है? तो अभी आप इसको एज ए इन्वेस्टर देखें, नॉर्मल इन्वेस्टर, ज्यादा आसान क्या होगा, खुद का बिजनेस सेट करना या किसी ऑयल रिफाइनरी कंपनी के शेयर्स बाय करना? आउट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन व्हाट इज इजियर? खुद का बिजनेस करना। ओके, जो लोग बिजनेस करने की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि आपको वो ज्यादा आसान क्यों लग रहा है? क्योंकि शेयर कभी भी ऊपर नीचे हो सकते हैं और अपना बिजनेस अपना रहता है कि कितना भी प्रॉफिट हो वो अपना होता है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि शेयर प्राइस ऊपर नीचे होगा, सो इवन दो ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री प्रॉफिट्स में कर रही है तो भी आपकी आप जो शेयर प्राइस है वो ऊपर नीचे होगी, और आप जो बिजनेस सेट कर रहे हैं उसमें आप प्रॉफिट ही कमाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं, लॉस भी होगा बट खुद का बिजनेस ज्यादा अच्छा। अच्छा, आपको खुद का बिजनेस, ठीक है, वैसे इसमें कोई सही गलत का तो ऐसा है नहीं, दोनों ही अपने वे में सही है। लेकिन अगर आप इसको एज अ नॉर्मल इन्वेस्टर देखते हैं, राइट नाउ इफ आई आस्क यू कि अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आप जो पोजीशन में हैं उस हिसाब से क्या आसान है, बिजनेस सेट करना ही आसान है खुद का? नहीं, इन्वेस्ट करना शेयर मार्केट। अब मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों ये बार बार पूछ रही हूँ। ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बिजनेस सेट करने में कोई गलती नहीं है, बिजनेस सेट करना है ना, जाहिर सी बात है, बिजनेस नहीं होंगे तो इकोनॉमी कैसे फंक्शन करेगी। लेकिन अगर हम ये दोनों को कंपेयर करते हैं तो ज्यादा आसान शेयर्स बाय करना है। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि कोई भी बिजनेस सेट करने के लिए पहली बात तो आपको बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत है। कैपिटल हो सकता है लाखों रुपए का लगे, करोड़ों रुपए का भी लग सकता है ऐसे टाइप के बिजनेस को सेट करने के लिए। और वो सिर्फ बिजनेस को शुरू करने के लिए नहीं लगता, बिजनेस के शुरुआत से लेके उसके अंत तक कभी भी कैपिटल रिक्वायरमेंट जाग सकती है। तो पहले तो क्या हम ये कैपिटल रेज कर सकते हैं इतना ज्यादा, और क्या हम उतने ज्यादा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी रखते हैं कि हम एक बिजनेस शुरू करने में लाखों रुपए डालें और कल को अगर वो डूब गया तो क्या हम वो लाखों रुपए का जो लॉस है वो सह सकते हैं? ये भी एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन जब आप शेयर्स बाय करते हैं तब आप लाखों रुपए के शेयर्स नहीं खरीदोगे। आप सोचोगे कि चलो
ये देखने के लिए कि क्या सच में मुनाफा होता है कि नहीं, आप शायद से 5,000 रुपए डाल के शेयर्स बाय करोगे टू एनालाइज हाउ इट इज, राइट। लेकिन 5,000 रुपए में आप एक ऑयल रिफाइनरी बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। तो अगर आप में रिस्क लेने की क्षमता बहुत है, आपको लगता है कि यस आप कैपिटल भी रेज कर सकते हो, तो यू कैन गो अहेड विद सेटिंग अप योर ओन बिजनेस। बट इफ यू लुक एट दिस एज अ वेरी नॉर्मल इन्वेस्टर, बाइंग शेयर्स विल बी इजियर। आज अगर ऑयल रिफाइनरी अच्छा कर रही है, कल फार्मास्यूटिकल करेगी, फिर एफएमसीजी करेगी। बट हम हर इंडस्ट्री के अंदर तो बिजनेस नहीं शुरू कर सकते ना, लेकिन हर इंडस्ट्री के अंदर किसी अच्छी कंपनी के शेयर्स हम जरूर बाय कर सकते हैं, राइट। क्योंकि ना ज्यादा कैपिटल लगता है, ना वो उतना रिस्की है, और ना ही उतना समय भी लगता है। क्या आप मेरे साथ इस पे अग्री करते हैं? क्या आप अग्री करते हैं मैं जो बोल रही हूँ वो सही है? यस मैम। यस, ओके। तो अभी अगर आपको शेयर्स बाय करने हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि शेयर्स ले कैसे। शेयर्स बाय करने के लिए भी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्टली उसको मार्केट में बाय कर सकते हो, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी, या म्यूचुअल फंड्स जो एक अलग ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसमें इन्वेस्ट करके भी आप शेयर्स बाय कर सकते हो। ये हम बाद में करेंगे। प्लीज आप अपना माइक म्यूट पे रखें, उससे बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। ओके, अभी हम ये देखते हैं कि अगर आपको मार्केट में शेयर्स बाय करने हैं तो आप कैसे करोगे। तो मैंने आपको जैसे बताया था इन द स्टार्टिंग कि हमारा जो कंट्री का सिक्योरिटीज मार्केट है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आप दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन दोनों के बीच में एक अंतर भी है। आपको ये लाइन दिख रही है, ये इनका अंतर एक्सप्लेन करने के लिए है, ठीक है। तो अभी ये समझते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है और आप इनमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो पहले प्राइमरी मार्केट की बात करते हैं। अब मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि अगर कोई बिजनेस सेट करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, कैपिटल, राइट। कैपिटल सिर्फ बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए नहीं चाहिए होता, बिजनेस के थोड़े साल गुजर जाने के बाद भी उनको कैपिटल लग सकता है। मान लो उनको अपना बिजनेस जो है और ग्रो करना है, उनको यू नो एक्सपांड करना है और नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने हैं मार्केट में, देश के बाहर बिजनेस को लेके जाना है, या रिसर्च कैरी आउट करना है, तो कोई भी पर्पस के लिए उनको वापस कैपिटल की जरूरत लग सकती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर इनको कैपिटल चाहिए तो कैपिटल लाया कहाँ से जाए। तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, या तो आप बैंक से लोन ले सकते हो, या तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली से लोन ले सकते हो इफ दे आर रेडी टू गिव यू द लोन। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, लोन ले तो ले, लेकिन लोन जो होता है उस पे हायर इंटरेस्ट रेट्स होते हैं जिसको चुकाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक और चॉइस जो बिजनेसेस के पास होते हैं टू रेज कैपिटल इज, प्लीज हियर मी आउट केयरफुली, बिजनेसेस या कंपनीज खुद के सिक्योरिटीज, खुद के शेयर्स, खुद के बॉन्ड्स, खुद के डिबेंचर्स मार्केट में जो पब्लिक है उनको ऑफर करके उनके माध्यम से कैपिटल रेज करती है, ठीक है। तो जब भी कोई कंपनी, कोई भी कंपनी पहली बार अपने सिक्योरिटीज, चाहे वो शेयर्स हो, वो डिबेंचर्स हो, वो बॉन्ड्स हो, पब्लिक को ऑफर करती है, मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं, पब्लिक है, उनको ऑफर करके उनके माध्यम से कैपिटल रेज करती है, उस मार्केट को हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। मान लो मैंने अपनी कंपनी शुरू की, कंपनी मेरी चल रही है, ठीक है। अब मुझे नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने हैं तो उसके लिए मेरे पास कैपिटल नहीं है, तो अब मैं अपने शेयर्स या अपने डिबेंचर्स जो मार्केट में पब्लिक है उनको ऑफर करूंगी ताकि वो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करें और मुझे कैपिटल मिले। तो क्योंकि मेरी कंपनी ने इसके पहले कभी ये नहीं किया, इट्स द फर्स्ट टाइम, वो मार्केट को हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। सो इसलिए प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पहली बार नए सिक्योरिटीज इशू हो रहे हैं, इसके पहले वो कभी नहीं हुए हैं, राइट। एंड प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर्स जो होते हैं और कंपनी जो होती है उनके बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं होती, कंपनी डायरेक्टली अपने सिक्योरिटीज इन्वेस्टर्स को इशू करती है, उनके बीच में किसी भी तीसरे पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो प्राइमरी मार्केट बेसिकली कैपिटल रेस करने के पर्पस से एग्जिस्ट करती है। तो आपने आईपीओ सुना होगा कभी, आईपीओ जिसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, जैसे कि जोमैटो
जो एक बहुत ही फेमस फूड डिलीवरी ऐप है जिससे हम घर पे खाना मंगाते हैं, उन्होंने अपना आईपीओ पिछले साल निकाला था। नायका एक ऐप है जो लड़कियों को पता होगा क्योंकि उससे हम मेकअप ऑर्डर करते हैं, उन्होंने भी अपना आईपीओ निकाला है। तो आईपीओ क्या होता है? आईपीओ इज अ प्रोसेस जहां पर कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर्स मार्केट में ऑफर करती है, इसको आईपीओ बोलते हैं। तो वो एक तरीका है प्राइमरी मार्केट में कैपिटल रेस करने का। तो जब भी आप एक आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो उसको हम एक प्राइमरी मार्केट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, राइट? तो एक बार कोई कंपनी प्राइमरी मार्केट में आ गई, उसने अपने सिक्योरिटीज इशू कर दिए, शेयर्स ऑफर कर दिए, उसके बाद जो भी उसके रिलेटेड ट्रेडिंग होती है वो सेकेंडरी मार्केट में होती है, ठीक है? तो प्राइमरी मार्केट में एक बार कंपनी आ गई, उसने अपने सिक्योरिटीज ऑफर कर दिए। अब सिक्योरिटीज नए तो है नहीं क्योंकि उन्होंने ऑफर कर दिए, अब वो हो चुके हैं पुराने, तो उसकी जो ट्रेडिंग होती है वो सेकेंडरी मार्केट में होती है, इसलिए इसको पोस्ट इशू मार्केट भी कहा जाता है। तो सेकेंडरी मार्केट में जो बायर और सेलर होता है, जो आपस में ट्रांजैक्शन करता है, ये सिक्योरिटीज की बाइंग सेलिंग करता है, वो यूजुअली एक स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से करता है। स्टॉक ब्रोकर एक बहुत इंपॉर्टेंट थर्ड पार्टी है जो सेकेंडरी मार्केट में एग्जिस्ट करती है। और सेकेंडरी मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो होता है वो है लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी मतलब आप अपने सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। प्राइमरी मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है, वहां पे आपने शेयर्स बाय किए, पर वो सिर्फ आपके शेयर्स हैं, आप उसको सेकेंडरी मार्केट में बेच के उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे से काफी अलग है, लेकिन ये दोनों में ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, राइट? अब चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, दोनों मार्केट बहुत बड़े हैं, दोनों ही सिक्योरिटीज मार्केट का ऐसा है। क्या आपको लगता है कि इनको मॉनिटर करने के लिए, इनको देखने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हमारे कंट्री में कोई बॉडी होनी चाहिए? यस या नो? यस। वेरी गुड। जाहिर सी बात है ना, होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई बॉडी नहीं होगी तो कितनी चीटिंग होगी, कितने फ्रॉड होंगे, कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा। तो इन चारों में से जो बॉडी हमारे जो है हमारे कंट्री में जो पूरे मार्केट्स को देखती है वो है सेबी। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यहाँ पर दिया है। सेबी के कई सारे ऑफिसेज है हमारे कंट्री में जिसको आप विजिट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। पर सेबी है क्यों, उसका काम क्या है, ये तो हमें पता होना चाहिए ना। तो सेबी 1988 में एस्टैब्लिश की गई थी, ठीक है, बहुत सालों पहले। लेकिन जब उसे बनाया गया था तो गवर्नमेंट ने उसको इतने पावर नहीं दिए थे। लेकिन 4 साल बाद इन द ईयर 1992 जब हमारे कंट्री में एक बहुत बड़ा स्कैम एक्सपोज हुआ, हर्षद मेहता स्कैम, तभी सबको लगा कि इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है। अगर कोई ऐसी स्ट्रिक्ट बॉडी नहीं रहेगी तो ऐसे टाइप के ब्लंडर होते रहेंगे, इन्वेस्टर्स का भरोसा उठ जाएगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। इसीलिए तभी जो पार्लियामेंट है हमारी कंट्री की, उसने एक एक्ट पास किया कॉल्ड सेबी एक्ट ऑफ 1992, जिसके चलते सेबी के पावर्स को बढ़ाया गया, ठीक है, और सेबी को स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस दिया। तो सेबी का जो मेन काम है वो पूरे फाइनेंशियल मार्केट्स को देखने का है कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने का है, इन्वेस्टर्स के भरोसे को बढ़ाने का है। क्योंकि एज आई टोल्ड यू, अगर भरोसा नहीं रहेगा तो हम इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे। इसलिए सेबी बहुत इनिशिएटिव्स लेती है, ऐसे प्रोग्राम्स अरेंज करती है जिससे लोग अवेयर हों और वो अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करें। क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज एंड अवेयरनेस के ही कारण ज्यादा लोग ये नहीं कर पाते हैं। हमारा देश इतना बड़ा है, इतने लोग हैं, लेकिन इतने से परसेंटेज ऑफ पीपल ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि काफी लोग अवेयर ही नहीं है ना, राइट? उन्हें पता ही नहीं है क्या करना है, कैसे शुरुआत करनी है, राइट? इसीलिए ऐसे टाइप के प्रोग्राम्स वो ऑल ओवर द कंट्री अरेंज करते हैं ताकि आप सबको पता चले कि क्यों हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और हम कैसे उसको शुरू कर सकते हैं। एक और इनिशिएटिव जो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो सेबी ने लिया, इस 2011 में उन्होंने अपना खुद का एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया जिसको हम बोलते हैं स्कोर्स,
सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेसल सिस्टम। तो ये एक ऑनलाइन वेब पोर्टल है जहां पे आप अपने कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। कल को मार्केट में अगर किसी ने मान लो आपने एक ब्रोकर को अपॉइंट किया है अपने लिए, ठीक है, आपका ब्रोकर आपके साथ कोई तरीके की चीटिंग करता है, अब आपको उसको सबक सिखाना है। ऑब्वियसली उसने आपके साथ चीटिंग की है, आपके हार्ड अर्न मनी के साथ खेला है, तो अब आप जाओगे कहाँ उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करने? यहाँ www.scores.gov.in, इस पे आपको लॉग इन करना है। आप उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करोगे, आपके ईमेल पे आपको एक टिकट नंबर दिया जाएगा जिससे आप अपने कंप्लेंट के प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो कि कहां तक बात पहुंची है, ठीक है। और इसको और आसान बनाने के लिए इसका मोबाइल ऐप भी आप अपने फोन पे डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल अपने फोन पे करते हो, वैसे इसका मोबाइल ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आई फील ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इन्वेस्टर्स को एम्पावर करने का और उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का बाय सेबी। एक और चीज है, इनका हेल्प डेस्क है, ठीक है, इंफॉर्मेशन डेस्क है। तो बेसिकली उनकी एक वेबसाइट है, इन्वेस्टर वेबसाइट, जिसपे एक सेकेंड ना, जिसपे आप लॉग इन करके हर टाइप का इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हो। उनका टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी है जहां पर आप कभी भी फोन करके अपने इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज को सॉर्ट आउट भी कर सकते हो बिटवीन मंडे टू फ्राइडे 9:30 AM to 5:30 PM। उनका ईमेल आईडी भी है asksebi@sebi.gov.in, जहां पर आप अपने इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज मेल कर सकते हो। एंड लास्टली, अगर आपको अपने सिटी या टाउन में किसी फिजिकल सेबी ऑफिस को विजिट करना है तो ये वेबसाइट से आप पता लगा सकते हो कि नियरेस्ट सेबी ऑफिस कहाँ है। तो आप ये जो स्लाइड है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये टाइप का इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबके काम आता है। आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अगर आप कभी किसी चीज में कोई मुश्किल आप फेस करते हैं तो आपको 10 और लोगों को पूछना नहीं पड़ेगा। आपको पता है फोन करना है तो ये नंबर है, मेल भेजना है तो ये ईमेल आईडी है, मुझे वेबसाइट पे अगर कुछ चेक करना है तो ये वेबसाइट है। यू विल नो वेयर डू यू हैव टू गो इन केस ऑफ एनी क्वेरीज, राइट। इसके अलावा एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि कोई भी टाइप का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले आपको 3 अकाउंट खोलने की जरूरत है। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, शेयर्स बाय करने, कुछ भी करना हो, उसके पहले आपको 3 अकाउंट खोलने की जरूरत है। अब वो 3 अकाउंट मैं बताती हूँ कौन से है। पहला जो बेसिक अकाउंट आपको ओपन करना है वो है सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट आप कोई भी बैंक में ओपन कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद आता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग मतलब जो भी बाइंग और सेलिंग आप करोगे वो आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से ही करोगे, है ना। और आपका सेविंग्स अकाउंट आपके ट्रेडिंग अकाउंट से जुड़ा हुआ होता है। तो जब आप शेयर्स बाय करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके सेविंग्स अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाते हैं। जब आप शेयर सेल करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके ट्रेडिंग अकाउंट से शेयर्स चले जाते हैं और सेविंग्स अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाते हैं, इसलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक्ड होता है। एंड लास्ट है आपका डीमैट अकाउंट, जो होता है डीमटेरियलाइजेशन के लिए, which is the process of converting physical shares in the electronic form। तो पहले जब हम किसी कंपनी के शेयर्स बाय करते थे तो एक फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता था, ठीक है। क्या होता था वो एक पेपर होता था जिसपे एक प्रूफ था कि हमने एक कंपनी के शेयर्स बाय किए। अब वो पेपर में नहीं होता, अब सीधे सीधे डिजिटल या ऑनलाइन मोड में वो आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाता है। कितना ज्यादा आसान कर दिया है ना हमारे लिए कि हमें कुछ संभालने की भी जरूरत नहीं है, आराम से हम बैठ सकते हैं क्योंकि वो हमारे डीमैट अकाउंट में है। तो सेविंग्स, ट्रेडिंग, डीमैट, ये 3 अकाउंट खोले बिना आप कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। और जब भी आप ये अकाउंट्स ओपन अप करते हो तो इससे रिलेटेड जो भी पासकोड्स होते हैं सिक्योरिटी के पर्पस के लिए, वो आपको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होता है और ये आपको सिर्फ अपने तक रखना चाहिए। तो बहुत एप्स आए हैं मार्केट में जैसे ग्रो, जीरोधा, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ये ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलने की।
काफी बैंक्स भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और काफी ब्रोकिंग फर्म्स भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो कहीं पर भी आप ये ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट खोलोगे तो वहां पर आपका केवाईसी किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। तो इसके चलते वो कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं आपसे, वो वेरिफिकेशन के लिए होता है। तो आपको अपना पैन कार्ड कंपलसरी है देना एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एंड एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस आप अपना पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर्स आईडी या आधार कार्ड दे सकते हो। आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है बट पैन कार्ड है। एक बार आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर लिए एंड सारा वेरिफिकेशन हो गया तो आपका ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुल जाता है एंड आप इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज शुरू कर सकते हैं। ओके, सो प्लीज रिमेंबर कि ये डॉक्यूमेंट्स देना रिस्की नहीं है, बट मेक श्योर करें कि जिसके साथ भी आप ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं वो जगह वेरीफाइड है, सभी के साथ रजिस्टर्ड है। इट शुडेंट बी के किसी के साथ भी ओपन कर दिए डॉक्यूमेंट्स दे दिए, नहीं, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ ऐसे बेसिक और रूल्स है इन्वेस्टिंग के जो आपको पता होने चाहिए। वो ये है कि जब आप कोई भी तरीके की इन्वेस्टिंग करते हैं ना, तो उसके पहले बहुत ज्यादा रिसर्च और एनालिसिस कैरी आउट करना जरूरी है। ऐसे नहीं कि किसी ने आपको बोल दिया कि यहाँ के शेयर्स मैंने लिए तो आप भी जाके ले लो बिना सोचे समझे। आपको डिलिजेंट रहना जरूरी है। मतलब अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी निकालने की कोशिश करो इन टर्म्स ऑफ के कंपनी का रेवेन्यू जो है वो बढ़ रहा है या नहीं, सेल्स कैसे हो रहे हैं, प्रॉफिट्स ग्रो हो रहे हैं क्या, पास्ट में उन्होंने अपने जो रिटर्न्स है, जो लोन्स है वो क्लियर किए हैं कि वो कर्जे में डूबी हुई है, बाकी सारे कंपनियों के साथ कैसे compete कर रही है। तो ये रिसर्च कैरी आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट के पहले नहीं बट इन्वेस्टमेंट के समय भी। जैसे आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया तो डेली 30 मिनट्स आप जब उठते हैं आप अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक करने में स्पेंड करो कि कैसा मार्केट चल रहा है, फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स रीड करो जिससे आप अपडेटेड रहो एंड अवेयर रहो कि आपके आजू बाजू चीजें क्या हो रही हैं, राइट? ऐसे नहीं आज आपने शेयर्स बाय कर लिए 10 दिन बाद आप उठ के देखते हैं अरे क्या हो गया उसका, नहीं, वो एकदम गलत अप्रोच होता है टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस क्या होता है, कभी कभी रिसर्च और एनालिसिस अकेले करना रिस्की भी होता है क्योंकि हमें इतनी समझ नहीं होती। तो ऐसे केस में हम प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं थ्रू ब्रोकर्स, थ्रू इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। तो ये जो होते हैं ये अपनी सर्विस काफी अच्छे से प्रोवाइड करते हैं क्योंकि इनको मार्केट का नॉलेज होता है। तो आप इनकी भी मदद ले सकते हैं बट मेक श्योर करें कि ये सेबी यानी कि हमारे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड हो। अनरजिस्टर्ड इंटरमीडिएटरीज के साथ प्लीज डू नॉट डील और टेक एनी काइंड ऑफ हेल्प। Apart from this, another thing that you should know is that नेवर बिलीव इन अनसॉलिसिटेड इन्वेस्टमेंट टिप्स। मतलब कि कोई भी आपको इनसाइडर टिप कोई फ्रेंड देता है या कोई एसएमएस जैसा आता है आपको, वो सब बकवास होता है। आप अपना रिसर्च कैरी आउट करो, आप चाहे तो अपने ब्रोकर को कंसल्ट करो और फिर डिसीजन लो वेदर आपको वो चीज करनी है या नहीं। एंड लास्टली, प्लीज किसी और की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को कॉपी करने का ट्राई कभी मत करो, बिकॉज आपका जो रिस्क कैपेसिटी है और जो बाजू वाले का रिस्क कैपेसिटी है वो अलग है। आपका जो फाइनेंशियल गोल है और उसका जो फाइनेंशियल गोल है वो अलग है। आप देख रहे हैं कि आप अपने लिए एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं 7-8 साल बाद, वो देख रहा है कि उसको सिर्फ अपने लिए एक मोबाइल फोन खरीदना है 5 साल बाद। तो हम दोनों के गोल्स एक दूसरे से बहुत अलग है, तो हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी एक दूसरे से अलग ही होगी उसको अचीव करने के लिए। सो प्लीज दूसरों के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को मॉक करने का ट्राई कभी नहीं करना चाहिए। आप अपने रिस्क कैपेसिटी और फाइनेंशियल गोल के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो व्हाट इज suitable for you. And on that note, I would like to end the wellness program for today. So if you have any kind of doubts or queries, you can ask me. हॅलो, कुणाला प्रश्न विचारायचे असतील तर विचारू शकता. काही प्रश्न नाही आहे? नॉट एनी क्वेश्चन्स? नो. ओके.
Okay, thank you, Diksha madam. May I now request Principal Sir, Dr. Nagare Sir, for his presidential हेलो address. हाँ, अर्चना मैम, मेरी रिक्वेस्ट है सभी पार्टिसिपेंट से कि मैंने चैट बॉक्स में एक फीडबैक लिंक डाली हूँ, तो Okay. सारे पार्टिसिपेंट जो है अपना अपना फीडबैक उसमें दे दें. सर्व विद्यार्थ्यांनी फीडबॅक लिंक दिलेली आहे चॅट बॉक्स मध्ये. सगळ्यांनी फीडबॅक भरणं कंपल्सरी आहे. आप लोग प्लीज फीडबैक फॉर्म भर दो ताकि आपको आपके जो ई सर्टिफिकेट्स है ना सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए वो आपको मिल जाए अच्छे से. सो प्लीज सेशन को एग्जिट मत करना विदाउट फिलिंग द फीडबैक फॉर्म. मी नागरे सरांना विनंती करते की त्यांनी प्रेसिडेन्शियल ऍड्रेस द्यावा. नागरे सर. हा, धन्यवाद मॅडम. आत्ताच आपण वेल्थ अवेअरनेस प्रोग्राम आणि ऍड ऑन कोर्सच्या या उद्घाटन समारंभामध्ये सुरुवातीला वेल्थ अवेअरनेस च्या अंतर्गत मिस दीक्षा गोजिया, इकॉनॉमिक्स इन्व्हेस्टर ट्रेनर यांचं शेअर मार्केटच्या संदर्भात आणि इन्व्हेस्टमेंटच्या संदर्भात उत्कृष्ट असं मार्गदर्शन ऐकलं. शेअर मार्केट ही एक मोठी इन्व्हेस्टमेंट कंपनी आहे असं म्हटलं तरी हरकत नाही. मात्र त्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट करत असताना त्याचं नॉलेज घेणं, दररोज अपडेट राहणं, इकॉनॉमिक्स च्या क्षेत्रामध्ये होत असलेले जे चेंजेस आहेत त्या संदर्भात अवेअर राहणं आणि विद्यार्थ्यांनी त्या संबंधातील वेबसाईट, वर्तमानपत्र आणि जे मोबाईल ऍप आहेत त्याचा वापर करून आर्थिक इन्व्हेस्टमेंट बद्दल अवेअर राहणं, त्याचा अभ्यास करत राहणं गरजेचं आहे. आणि त्यासोबतच तो अभ्यास चांगल्या पद्धतीने झाल्यानंतर स्वतःची इन्व्हेस्टमेंट स्ट्रॅटेजी ठरवणं हे गरजेचं आहे. मॅडमनी छान सांगितलं की अजूनही विद्यार्थ्यांनाच नव्हे तर आपल्या भारतीयांना या शेअर मार्केटच्या संदर्भात अवेअर होणं फार गरजेचं आहे. आणि मोठ्या प्रमाणात जेव्हा भारतीय लोक शेअर मार्केट बद्दल अवेअर होतील, इन्व्हेस्टमेंट बद्दल अवेअर होतील, तेव्हाच आपल्याला चांगल्या पद्धतीने आपली आर्थिक बाजू मजबूत करता येऊ शकेल. तर त्याबद्दल मी महाविद्यालयाच्या वतीने मॅडमचं अभिनंदन करतो आणि आभार व्यक्त करतो. बहुत अच्छे से आपने समझाया, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बच्चों को ये समझाया कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा. उसके बारे में जो वर्तमान पत्र है, न्यूज़पेपर्स है, जैसे हमारे विदर्भ में जो बच्चे हैं या लोग हैं जो इस बारे में इतना अवेयर नहीं है, वो टीवी देखते हैं, मोबाइल में चैट करते हैं और व्हाट्सएप देखेंगे, फेसबुक देखेंगे, लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स नहीं पढ़ेंगे. यानी कौन से न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो इस बारे में भी उनको अपनी जो चॉइस है वो बदलना पड़ेगा. यदि आपको अच्छा इन्वेस्टर होना है तो आपको मोबाइल व्हाट्सएप ना देखते हुए या लोकल न्यूज़पेपर ना पढ़ते हुए आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में जो भी न्यूज़पेपर आते हैं या जो वेबसाइट रहती है या जो भी व्हाट्सएप मोबाइल ऐप रहते हैं वो देखते रहना चाहिए ताकि आप इस बारे में अवेयर रहे. ये
समझाना, और उस न्यूज़पेपर का नाम भी यदि मैडम ने अगर बताया होता, या कुछ टीवी चैनल्स का नाम बताया होता कि बच्चों ने कौन से टीवी चैनल देखने चाहिए, या कौन से न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए, या कौन से जर्नल पढ़ने चाहिए, ताकि वो या शेयर मार्केट के बारे में या इन्वेस्टमेंट के बारे में अवेयर रहे, तो ज्यादा बेहतर होता। फिर भी उन्होंने अच्छे से समझाया, और शायद मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क होने के बाद मैडम बता भी देंगे आपको। मैडम को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वेबसाइट, न्यूज़पेपर, मोबाइल ऐप और जर्नल्स कौन से बच्चों ने रेफर करनी चाहिए, ताकि उनका इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉलेज जो है वो अच्छा हो जाए, वो बताएंगे। मी या ठिकाणी एक घोषणा करू इच्छितो की वेल्थ अवेअरनेस प्रोग्राम हा जो कॉमर्स फॅकल्टी ऑफ कॉमर्स आणि ॲडवायझर ऑर्गनायझेशन पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आला। त्याचं तसेच महाविद्यालयामध्ये अनालिसिस अँड मॅनेजमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट फॉर स्टुडंट्स आणि अप्लाइड सोशलॉजी या 2 विषयावरील ॲड ऑन कोर्सचं उद्घाटन सुद्धा या ठिकाणी संपन्न झालं आहे, अशी मी घोषणा करतो। आणि कॉमर्स विभागाच्या वतीने वेल्थ अवेअरनेस प्रोग्राम आयोजित करून विद्यार्थ्यांना शेअर मार्केट बद्दल महत्त्वपूर्ण माहिती उपलब्ध करून दिल्याबद्दल कॉमर्स विभागाचे सुद्धा आभार व्यक्त करतो, अभिनंदन करतो। आणि या कार्यक्रमाकरिता मैडम आपने समय निकाला और बच्चों को बहुत अच्छा समझाया, हिंदी में समझाया। इसके लिए आपको महाविद्यालय की तरफ से बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। मैंने जो फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स हैं और मैगजीन्स हैं उनके नाम चैट बॉक्स में डाल दिए ताकि बच्चे वो आसानी से नोट डाउन कर ले या उसका स्क्रीनशॉट ले ले। सो आप लोग ये रीड कर सकते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में चीजें एक्सप्लेन की गई हैं इसमें, क्योंकि मैं खुद ये पढ़ती हूँ, तो मैं जो खुद पढ़ती हूँ मैं चाहती हूँ कि आप भी पढ़ो, राइट। एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके कॉलेज में ये सेशन करके, एंड स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, काफी इंटरेक्ट किया उन्होंने, एंड आई एम वेरी श्योर कि ये सब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनेंगे। सो ऑल द बेस्ट एवरीबडी, keep learning, keep growing and keep investing. Thank you so much. मैम आप म्यूट मैम अनम्यूट कीजिए मैम। May I now request Dr. Saraf Madam to propose vote of thanks? Thank you, Archana ma'am. Good morning, one and all. The last but not least and most important event of the program is vote of thanks. Vote of thanks कडे जाण्यापूर्वी आज आमच्या महाविद्यालयाचा महत्त्वाचा दिवस म्हणजे आमच्या संस्थेचे फाउंडर स्वर्गीय शंकरलालजी खंडेलवाल यांचा स्मृती दिन आज आहे। मी त्यांना विनम्र अभिवादन करते। आमच्या महाविद्यालयाच्या वाणिज्य विभागामार्फत आणि ॲडवायझर्स ऑर्गनायझेशन पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने वेल्थ अवेअरनेस प्रोग्राम आयोजित करण्यात आलेला आहे। सर्वप्रथम मी वेल्थ अवेअरनेस प्रोग्राम करिता ॲडवायझर्स ऑर्गनायझेशन पुणे यांचे महाविद्यालयातर्फे आभार व्यक्त करते। कॉमर्स डिपार्टमेंट आणि समाजशास्त्र विभागामार्फत ॲड ऑन कोर्स घेतला जातो, त्याचाही उद्घाटन समारंभ आज पार पडला आहे। तर या संयुक्त कार्यक्रमाला अध्यक्ष म्हणून लाभलेले महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर शिवाजी नागरे सर यांची मी मनपूर्वक आभारी आहे। ते आपला मौल्यवान वेळ काढून आमच्या सोबत जॉईन झाले आणि कार्यक्रमाकरिता सहकार्य केले। धन्यवाद सर। आजच्या वेल्थ अवेअरनेस प्रोग्रामला प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून लाभलेल्या दक्षा गोजिया मॅम यांची मी महाविद्यालयातर्फे मार्फत आभारी आहे। आजच्या प्रगत अर्थव्यवस्थेच्या आणि ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजीच्या काळात आर्थिक नियोजन, इन्व्हेस्टमेंट आणि त्या संबंधीची वास्तविक जाणीव
आम्हाला आणि आमच्या विद्यार्थ्यांना अतिशय सोप्या पद्धतीने समजावलीत मॅडम. पुनश्च आपले धन्यवाद. तसेच महाविद्यालयाचे प्राचार्य माननीय डॉक्टर साबू सर यांनी कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य केले, त्यांची सुद्धा मी आभारी आहे. ह्या कार्यक्रमाच्या ऑर्गनायझर डॉक्टर अर्चना खंडेलवाल मॅडम, हेड डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंट्स अँड स्टॅटिस्टिक्स, आणि मिस्टर जय फ्रॉम ऍडवायझर्स ऑर्गनायझेशन यांची सुद्धा मी आभारी आहे. कार्यक्रम आयोजनासाठी सहकार्य करणारे BCA डिपार्टमेंटचे हेड डॉक्टर दीप्ती पतंगे, तसेच टेक्निकल टीम ह्यांनी आम्हाला कम्प्युटर लॅबोरेटरी उपलब्ध करून दिली आणि सहकार्य केले, त्याबद्दल मी ह्या सर्व टीमचे आभारी आहे. ह्या कार्यक्रमाच्या ऑर्गनायझेशन करता ज्यांनी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष सहकार्य केले, त्या सर्वांची मी आभारी आहे. ह्या प्रोग्रामचा व्हिडिओ युट्यूबवर पुन्हा अपलोड केला जाईल आणि ह्यानंतर सुद्धा तुम्हाला आवश्यकता पडेल तेव्हा तुम्ही तो बघू शकता. आता आपण इथे थांबूया. अध्यक्षांच्या परवानगीने हा कार्यक्रम संपला असं मी जाहीर करते. थँक्यू व्हेरी मच.